یہ تبارک. اچھا تو سسٹر آپ کے بتانے میں با بھی موٹا سنائی دے رہا ہے، آپ جو اصلاح بتا رہی ہیں وہ تو تبارک. جی تو بہرحال تنبیہ ہے تو جی خیال رکھیں اس بات کو کہ جب آپ بتائیں تو پہلے وہ جی لفظ بول رہے ہیں تاکہ یہ مینشن ہو جائے کہ آپ کون سی جگہ کی اصلاح بتا رہی ہیں. اور سسٹر صبا نے کاؤنٹر آنسر دیا ہے، کنفرنٹ کر رہی ہیں وہ کہ انہوں نے پہلی ہاتھ ادا کی ہے، تو انہی کی بات کو بڑا مانتے ہوئے ایک بار پھر سے ان سے سنتے ہیں. سسٹر صبا پڑھیے ذرا پہلی لائن صرف. سسٹر صبا شیخ. جی باجی. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. اچھی بات ہے. اور کوئی تنبیہ کوئی اور سسٹر بھی بتا رہی تھی کہیں اور، بتائیے بتائیں پلیز. الغرض پہلی بار پڑھنے میں ہو سکتا ہے وہ کمی رہی ہوں، اور جن لوگوں نے بتایا ہے انہوں نے بہت غور سے سنا ہوگا، ان کو محسوس ہوا ہوگا. اور یہاں پر اصلاح کرنے کا مقصد صرف ہماری اصلاح ہے، ہماری اور آپ کی اصلاح مقصود ہے. جزاک اللہ. خیال رکھیے باقی لوگ بھی. اب سسٹر کس کا ہے، سسٹر رافیہ پڑھیں گی. جی سسٹر رافیہ آپ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. جی بتائیے کیا اصلاح محسوس ہو رہی ہے. انہوں نے من الشیطان الرجیم پڑھنا تھا، الرجیم پڑھا. مطلب را کو باریک پڑھ دیا بجائے رات کو موٹا پڑھنے کے. باریک پڑھ دیا بجائے موٹا پڑھنے کے. جی سبحانکا میں ہا کو نہیں کھینچا، ایک الف کی مقدار نہیں کھینچا. اس طرح پڑھا انہوں نے. سبحانکا. اچھا اچھا. اور کوئی اصلاح؟ سسٹر سہولت بتائیے کیا اصلاح بتا رہی ہیں. کلہم نہیں بولے، کلہم ایسا ہوا. اللہ کے لام کو باریک پڑھا بجائے موٹا پڑھنے کے. موٹا پڑھنے کے. ہاں ٹیچر بھی نہیں پڑھا کر. سسٹر زینت آپ کیا فرما رہی ہیں. سسٹر سہولت مائک آف کیجیے. سسٹر زینت اعظم عظیم آپ کیا فرما رہی ہیں. چلیے شاید ان کو آواز نہیں آ رہی ہے یا ان کی آواز ہم تک نہیں آ رہی ہے. وہ کچھ بول رہی ہیں، مائک تو پورا شو لیکن آواز نہیں آ رہی. سسٹر صبا آپ دوسری تنبیہ کیا بتا رہی ہیں. کیا آواز آ رہی ہے میری؟ نہیں جی ابھی آئی ہے. جی. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ وہ لاسٹ میں جو تھا وہ لا الہ غیرک کی جگہ پہ انہوں نے غیرک کر دیا تھا، اور کاف میں ہمس نہیں دیا تھا، انہوں نے غیرک ہونا چاہیے تھا. آپ یہ کہہ رہی ہیں غیرک کی را پر ہاں انہوں نے زبر پڑھنا چاہیے، انہوں نے پیش پڑھا. جی جی میں نے جو ایک منٹ آپ اس کی اصلاح کر لیں سسٹر زینت، ایک بار نظر ثانی کر لیں. جی جو آپ جی کہہ رہی ہیں آپ کے بولنے میں تو غلطی نہیں ہو رہی، یا خود ہی آپ کا اسی طرح آپ نے کہیں دیکھا ہے. وہ را کے پیش ہی کے ساتھ میں ہے جس کو آپ زبر کی اصلاح بتا رہی ہیں. نہیں میں تو غیرک کہہ رہی ہوں نا. نہیں آپ الٹا بول گئی تھیں ابھی. سوری میں الٹا بول رہی ہوں. ٹھیک جی ہے جی. ٹھیک ہے جزاک. ہمیں محسوس ہوا تھا کہ وہ سلپ آف ٹنگ ہو جی گیا جی ہے سبقت لسانی سے، تو آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ انہوں نے غیرک پڑھا، رکھ. جی جی جی. اچھا تو
वो तो हमें खैर महसूस नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है उस तरफ जहन न गया हो, आपने सुना है तो काफ में हो उन्होंने सकता हम्स भी नहीं दिया था, लास्ट में जैसे काफ वो था, सुकून था, तो वहां पे हम्स होना। हम्स के बारे में उन्हें अभी इत्तिला नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है हम्स सिफत के अभी हम लोग बिगनर्स हैं और बिल्कुल शुरुआती दौर में सबक नंबर 14 पर ही आए हैं, ठीक है, ठीक है। तो वो सिफत उन्होंने नहीं पढ़ी है। लेकिन आपने बहुत अच्छी और बहुत अनोखी बात कही, और अगर आज के दौर में किसी को हम्स की भी जानकारी है तो आप बताइए जरा उसको किस तरह अदा करना चाहिए जो इन्होंने नहीं अदा किया। वला इलाहा गैरक, गैर। सर आपको बताना चाहते हैं कि जो आपकी पहली बात थी जिसको आप सबकत लिसानी कह रही थी, जी। हमें लगता है कि आपको भी इस्लाह की जरूरत है, आपने गैरक ही पढ़ा है। हाँ हाँ, मैंने गैरक पढ़ दिया था। जी जी, वो मेरी जुबान पे ना वो है, मैं इसको कई दफा क्लास की कर चुकी हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे हो जाता है मुझसे। तो आप अपनी इसलिए बता रहे हैं या नहीं राफिया की बता रहे हैं? जी, वला इलाहा गैरुक। डिस्टर्बेंस है आपके बैकग्राउंड में, चेक कर बहुत लें उसको एक बार, और ख्याल रखें माइक ऑन करते हैं। कोई किसी की मशीन चल रही है। सिस्टर उकाशा अख्तर, आपका वीडियो जो है सिस्टर उकाशा प्लीज ऑफ कर लें। सिस्टर उकाशा, कोई और भी होस्ट हो तो प्लीज उसको ऑफ कर दें। हैंड रेस करिए जरा, हम आप लोग को होस्ट बनाते हैं। सिस्टर मैम हमको रुमाना, बना दीजिए रुमाना। सिस्टर रुमाना को बना दीजिए। जी बनाइए जी। बेटा। सिस्टर उकाशा, अगर आप हमें सुन पा रही हो तो फिलहाल आप अपनी तरफ से वीडियो ऑफ कर लें। थैंक यू। सिस्टर रुमाना है, डॉक्टर सैयदा हैं। डॉक्टर सैयदा आप भी अपना हैंड रेस कर लें प्लीज, क्योंकि डिसेबल हो जाती है हमारी स्क्रीन, फिर हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाते, कमांड नहीं दे पाते हैं अगर किसी की वीडियो ऑन होता है तो। अभी भी रेगुलरली किसी की वीडियो ऑन। सिस्टर रुमाना, आर जी यू मैम। एम ए? नहीं, आपका नाम सर्च कर रहे हैं, वो फाइंड नहीं कर पा रहे हैं। You have to make, it's happened many times, that's why I'm saying. रोमाना एंड सैयदा फिरोजा। डॉक्टर सैयदा आप मौजूद हैं कि क्लास में? देखिए मैम आप होस्ट हैं, हम हमको बना सकती हैं, क्या हुआ? जी, अभी एक मिनट, हम आपको देख रहे हैं अभी। असल में वीडियो ऑन है ना उनका, तो कमांड नहीं दे पा रहे हैं हम। अब जी अब ऑफ हो नहीं है, वीडियो है उनकी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैम मुझे बना दिए होस्ट, कहकशां कमाल जी जी बना रहे हैं, लेकिन वही है कि को होस्ट बना दिए, कमांड नहीं। सॉरी। You have to find here मेरा नाश्ता भी रोमाना बन कहते हैं कमांड। Find, go to the, yes, this one, and the next one is also there. Make, it's happened many times. It is supposed, इधर से नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम कम बना नहीं पा रहे। एक बार देखते हैं, एक बार और ट्राई करके देखते हैं सिस्टर के कशा को। मैम जो यूजर ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। मैम अगर आप तजवीज़ क्लास से कर रही हैं तो मैम को होस्ट हैं आप, लेकिन जो क्लास के नेम से ज्वाइन हुआ है उस यूजर से हो जाएगा ये। नहीं तो मैम तो होस्ट भी दिखाई दे रही है ना, जो क्लास के नाम से उस पे होस्ट दिखाई दे रही है। मैम उस वाले से करिए जिसपे आप होस्ट हैं। एक पर आप होस्ट हैं, एक पे होस्ट हैं, होस्ट वाले से होगा। अच्छा देखते हैं, रुकिए।
हम सिस्टर रोमाना हम आपको होस्ट बना रहे हैं, आप कंट्रोल कीजिएगा, ठीक है? ठीक है जी, करिए, हमको होस्ट बना देंगे फिर। देखिए नहीं हुआ मैम। ठीक है, अभी हो गया, देखिए हो चेक गया कीजिए। हो गया हो गया। जी मैम देखिए, अगर इजाजत हो आपकी एक बार पढ़ लें, उस वक्त थोड़ा हम डिस्टर्ब भी हो गए थे, बच्चों की बात सुनने लगे थे तो। रुमाना आपा, आप मुझे को होस्ट बता दीजिए, मैं माइक कंट्रोल कर लूंगी, आप स्क्रीन कर लीजिएगा। जी जी सिस्टर ठीक का है प्रॉब्लम, जी, ठीक है। अभी भी वीडियो ऑन है तो प्रॉब्लम हो रही है असल में। अगर जी सिस्टर राफिया, अभी आप शुरू कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अलगरज, अलगरज अभी जो हमें महसूस हुआ, दो बड़ी गलतियां सुनाई दी हैं और हम चाहते हैं कि आप में से मौजूदा लोगों में से कोई बताएं। वतआला में ला को नहीं खींचा उन्होंने, वतआला कर दिया उसको। जब हमने और पिछली बार रा को पढ़ा था, रुकिए रुकिए सिस्टर साहब, जब हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था तो हमने ये एक मेजर मिस्टेक और इसको खूब अंडर मार्क करके बताया था। लोग वतआला पढ़ते हैं, जो सिस्टर सबा बता रही हैं बिल्कुल ठीक बता रही हैं वो। वतआला, ला को थोड़ा स्ट्रेच करके पढ़ना है, खींच कर पढ़ना है, जबकि आपने उसको दो बार लौटाया अपने पढ़ने में, और दोनों ही बार हमें लगा दूसरी बार में पढ़ देंगी, उस वक्त भी आपने उसको नहीं खींचा, उसको खींचना है। और गैरुक, गैरुक, गैन हुरूफ मुस्तअलिया है, इसको हर हाल में मोटा ही पढ़ना चाहिए, हर हाल में। गैरुक भारी आवाज से पढ़ें। और ये वतआला जद्दुका के काफ को थोड़ा आपने खींचा, काफ के ऊपर जबर है, जबर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे, मारूफ पढ़ें, मजबूल आवाज से बचें, जबर की आवाज ऊपर को जाती है। तख्ती नंबर 3 हरकत के ताल्लुक से पढ़ा है। अलबत्ता बाकी चीजें आपने बहुत अच्छी पढ़ी, आवाज अंदाज बहुत अच्छा था, बहुत शुक्रिया सिस्टर राफिया, बहुत अच्छा आप पढ़ती हैं और पढ़ सुनाती रहिए माशाल्लाह। अब हमारी सिस्टर सुनाएंगी, सिस्टर राफिक सैयदा, आप अपना माइक ऑन कीजिए। रफीक है बच्ची, वो रफीक है बच्ची। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारकस्मुका व ताला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी आवाज थी आपकी, और जुड़ी रहिए, इंशाल्लाह कुछ तजवीद की इस्लाह होती रहेगी माशाल्लाह। चलिए अब सिस्टर सानिया पढ़ेंगे, सिस्टर सानिया आप पढ़िए। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। जितने भी लोगों ने उमूमन पढ़ा, सबने ताउज़ यानी अऊज़ु से शुरू किया, और सबके पढ़ने में लगभग यही अंदाज था, आउज़ु आउज़ु अऊज़ु आ। तो विदाउट स्ट्रेच, बगैर खींचे आ को पढ़ना है। हम अलिफ के ऊपर जबर है, जबर को जल्दी पढ़ें, आउज़ु नहीं अऊज़ु। अब पढ़िए एक बार फिर। आऊज़ु जी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। आपको उसी गलती को दोहराएंगे जो अभी आपने इससे पहले टोका गया, व तआला। हालांकि और जगह भी हुआ, लेकिन कम से कम उसका तो पासदारी रखिए जो एक बार बताया जा चुका है। व तआला, आ को भी खींचना है, ला को भी खींचना है। लोग आ को खींचते हैं, ला को नहीं खींचते। बात बाजी आइन आइन है ना, सही से नहीं निकल पाता हमसे आइन।
जो आपसे इतना बताई जा रही है पहले अगर आप उसको सुनेंगी तो उसको भी बताएंगे। इसके अलावा भी है जी लेकिन वो गलती दोहराई गई इसलिए उसको बताना ज्यादा जरूरी हो गया और वो जी जुर्म अजीम हो रहा है फिर। ठीक है, एक बार इसको पढ़िए, इसी वाले को जो हम इसला कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वता वतआला जद्दुका वतआला, और ला में प्रॉब्लम है, आपको ला खींचना है। फिर से पढ़िए एक बार। वतआला जद्दुका। माशाल्लाह, अभी एकदम अच्छा पढ़ा आपने। तो अभी आप बहुत फ्रेशर हैं, बहुत न्यू कॉमर हैं और पहली बार तजवीद पढ़ रही हैं। जी जी धीरे धीरे जो आप आइन की जो गलतियां बता रही हैं आपको महसूस होती है, उसके लिए बेहतर ये है कि पहले उसके मखरज को जाने, यानी कहाँ से वो निकलता है, दरमियानी हलक से, और थोड़ा प्रेशर दबाव के साथ में अदा होता है हलक के बीच हिस्से से। इस तरह नस्तईन प्रैक्टिस करनी होगी इसकी। जी पास पारी कहते हैं कि अगर आइन अच्छा अदा ना हो तो फ्रेश वाटर से आप विदाउट मेकिंग साउंड, बगैर आवाज का गरगरा कर लें, या ऐसी ऐसी आवाज निकालें जैसे हलक में मिर्चे निकल लगते वक्त अदा होता है, इस तरह। तो ये जी प्रैक्टिस से अदा होगा इंशाल्लाह। प्रैक्टिस करते रहें जी और फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में जज़ाकल्लाह खैर। सुनाएं। सिस्टर नाजनीन आप सुनाइए सूरह सना। सना माइक ऑन कीजिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم रुक जाइए, रुक وبحمدك जाइए, रुक जाइए। जो सिस्टर्स नाजनीन गलती कर रहे हैं, ये गलती भी बहुत लोग करते हैं। सुबहानका अल्लाहुम्मा, सुबहानका अल्लाहुम्मा आप पढ़ रही हैं, इस तरह ना पढ़कर काफ को अल्लाह के लाम से मिलाइए। काफ और अल्लाह के लाम के बीच में आ पढ़ती हैं आप, वो मत पढ़िए। जी मैम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा, इस तरह पढ़िए। फिर से पढ़िए एक बार। जी जी سبحانك اللهم जी وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك चलिए, बेहतर है माशाल्लाह। थोड़ा सा रा कम पुर सुनाई दिया वतबारा में, और थोड़ी सी और अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छा सुना पाएंगे। माशाल्लाह, अच्छा पढ़ा। अब ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा रिवीजन करके आज का सबक देख लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मन नाफ़िआ। हम पिछली क्लास में आर्टिकुलेशन, मखरज के ताल्लुक से, जहाँ से हर्फ अदा होते हैं, चीज़ें जान रहे थे, पढ़ रहे थे। ये 17 हैं और जो मेजर हैं वो 5 हैं, यानी ऐसी बड़ी जगहें 5 हैं जहाँ से इंसान के मुंह से आवाज़ निकलती है। उसमें मुंह का खाली हिस्सा, हलक, ज़बान, होंठ और नाक है, जो हमने इस फिगर में भी देखा था। और सबक के ताल्लुक से अगर बात की जाए तो हम अल-लिसान, ये वाला अल-लिसान, इसके बारे में पढ़ रहे थे, यानी वो हुरूफ जो ज़बान से अदा होते हैं, और उसमें हम रा के बारे में सीख रहे थे। रा, रा एक बारीक लेटर है और एक कंडीशनल लेटर भी आप इसको कह सकती हैं। जब आप सिंगल लेटर खाली हर्फ पढ़ती हैं, अलिफ बा ता था की सूरत में रा, तो इसकी साउंड हेवी होती है, लेकिन ये एक बारीक हर्फ है। फिर इसके साथ कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं तो ये कभी बारीक पढ़ा जाता है और कभी मोटा। रा का मखरज जानने से पहले ये जान लें कि 7 हरूफ ऐसे हैं जो हर हाल में मोटे पढ़े जाते हैं। खुस्सा, ज़ौत, नक़ज़,
इन्हें हरूफ मुस्तालिया या बोल्ड लेटर्स भी कहते हैं। रा को लाइट या हैवी पढ़ने की दो वजह हैं और उनकी तफसील अभी आगे हम जानेंगे। तजवीद की किताबों में कारी हजरात ने जो इस्तिलाह लिखी है, डेफिनेशन बताई है, वो ये है कि ज़बान की जड़ का ऊपर उठ जाना ये रा को, हर्फ रा को मोटा बना देता है। एलिवेशन ऑफ रूट ऑफ द टंग ये रा को की आवाज़ को बोल्ड कर देता है, हैवी कर देता है। लेकिन यहाँ पर जैसे देख सकते हैं ये रूट है और ये ऊपर उठा हुआ है। कुछ सर्कुलर या आर्क शेप में ज़बान जब हो जाती है तो रा ही नहीं कोई भी हर्फ भारी हो जाता है, पुर हो जाता है। और इसका मखरज ये है जो आप फिगर में देख रहे हैं, टिप ऑफ द टंग और ऊपर के तालु का तालु, ज़बान की नोक और ऊपर का तालु, और कुछ ज़बान का बैक पोर्शन भी, कुछ पुश्ते ज़बान भी माइल होती है। ये हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे। और ये हमें पहले से पता है कि अगर किसी हर्फ का एग्जिट स्पॉट पता करना हो, एक्चुअल कहाँ से वो हर्फ अदा हो रहा है, तो हम हमजा के साथ अदा करते हैं। हमजा शुरू में लगाते हैं और फिर पढ़ते हैं। जैसे यहाँ लिखा है और एर और, जब आप और एर और तीनों को पढ़ रही हैं तो कहाँ ज़बान, आवाज़ कहाँ रुक रही है, ज़बान की नोक और ऊपर का तालु, ये इसका आर्टिकुलेशन है या निकलने की जगह है। और हैवी लाइट में डिफरेंस इतना ही है कि सर्कुलर शेप्ड है टंग, या आप यूँ कहिए रूट ऊपर एलिवेशन हो रहा है रूट का, या जड़ ऊपर उठ रही है। ऐसे ही अगर ऊपर नहीं उठती है तो रा लाइट हो जाता है। दोनों तरह पर रा को पढ़ा जाता है। उन्होंने मिसाल दी है, रिजाल की रा को बारीक पढ़ेंगे, फिर आउन की रा को बारीक पढ़ेंगे, और रसूल, रहमा और अरकज़ और जह की रा को मोटा पढ़ेंगे। सवाल ये है कि कायदा क्या है? कायदा क्या है ये हम अभी नीचे देख लेते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। रा के अहकाम, यहाँ हम पिछली बार थे तो रा के ताल्लुक से 3 बातें जाननी होंगी। रा कभी तो मोटा पढ़ा जाएगा तफखीम के साथ, तफखीम यानी मोटा पढ़ना, तरकीक के साथ यानी बारीक पढ़ना, मुख्तलिफ फी का मतलब ये है कि पढ़नी तो चाहिए मोटा, पर मोटी रा को या मोटी आवाज़ से पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ते वहाँ बारीक आवाज़ से हैं। ऐसे ही एक और है उल्टा कायदा बज़ाहिर, कि पढ़ना तो उसे बारीक चाहिए लेकिन मोटा पढ़ रहे हैं, और कहीं मोटा पढ़ना चाहिए बारीक पढ़ रहे हैं। ऐसे जितने भी कायदे आएंगे उसे मुख्तलिफ फी कहेंगे। तो खुलासा कुल ये है कि रा को पढ़ने के 3 हाल हैं। एक ये कि उसे मोटा ही हैवी साउंड के साथ ही पढ़ा जाए, एक ये कि उसे बारीक आवाज़ से पढ़ें, एक ये कि जो कायदा हमें मालूम है मोटे और बारीक का, उसके खिलाफ जाकर बारीक पढ़ दें या मोटा पढ़ दें। इस तरह लोगों ने इसकी तफसील बताई है। नंबर 1, रा को मोटा पढ़ना, पुर पढ़ना, बोल्ड हैवी साउंड के साथ पढ़ना, उसे तफखीम कहते हैं या पुर पढ़ना भी क्या कहते हैं। और उसकी वजह क्या है कि रा जहाँ पर पुर पढ़ी जाती है, ऐसी 12 हालतें हैं, 12 जगहों पर 12 वजूहात से रा को मोटा पढ़ा जाता है। और ये बहुत आसान है। और रा पर ज़बर हो तो रा को मोटा पढ़ेंगे। मिसाल आपके स्क्रीन पर मौजूद है, यरौनहा, यरौनहा। सवाल ये है कि यरौनहा की रा को कैसा पढ़ेंगे? बताइए, जवाब दीजिए, कैसा पढ़ेंगे? मोटा पढ़ेंगे। मोटा पढ़ेंगे। मोटा पढ़ेंगे सवाल ये, आपा, जी बिल्कुल ठीक। सवाल ये है कि मोटा क्यों पढ़ेंगे? मैम रा पे जबर क्योंकि है। आपका जबर रॉ है, के ऊपर जबर है आपा। because if the ra is having zabar on the top, it जी। should be heavy और bold, क्योंकि इसके ऊपर जबर है। रीजन आपको पता है, बहुत आसान रीजन है, आपको बहुत याद करने की, बहुत समझने की जरूरत नहीं है कि अगर इफ जबर होगा अगर रा के ऊपर, तो रॉ को र नहीं पढ़ेंगे, रॉ पढ़ेंगे। ये हेवी और लाइट साउंड को खूब समझ लें। अगर र मुंह चौड़ा हो जाए, बाछे या मुंह के किनारे खुल जाए रा आ साउंड के साथ, ये रा की
लाइट साउंड है, बारीक आवाज है। रॉ अगर बाछें गोल हो जाएं, जबान कुछ गोल हो जाए और आवाज भारी सुनाई दे, ये रा मोटी है। तो हमने रा मोटी में एक कस्म ये देखी कि रॉ पर जबर हो। दूसरा ये कि वही एक दूसरे उसी की एक दूसरी मिसाल है नसरकुम, नसरकुम, ये असल आवाज है, सही आवाज है, मारूफ आवाज है। अगर हम इसको यूं पढ़े नसरकुम, रेकुम और रॉकुम, रॉकुम मुनासिब आवाज है क्योंकि रॉ को मोटा पढ़ेंगे जबर होने की वजह से। नसरकुम ये गैर मुनासिब आवाज है क्योंकि यहाँ रा मोटी है। दूसरी हालत है जब रा पर पेश हो, जैसे खैरुकुम, 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 रू रू रू। अगर पेश होगा तो भी हम रा को मोटा पढ़ेंगे। इसकी एक मिसाल और देख लेते हैं। जब रा पर पेश हो तो रूबमा, रूबमा, रूबमा इस तरह नहीं पढ़ेंगे, हैवी और मोटी आवाज के साथ पढ़ेंगे रूबमा। अब तफसील ये है कि रा पर अगर जबर पेश हो तो रा को मोटा पढ़ेंगे। तीसरी हालत ये है कि रा के ऊपर तशदीद हो या रा मुशद्दद हो। जिस रा पर तशदीद हो उसे रा मुशद्दद कहते हैं। रा पर तशदीद हो और तशदीद पर जबर हो तो ऐसे रा को भी मोटा पढ़ेंगे, जैसे और रोह, रोह और रहमान। अगर बारीक आवाज होगी तो अर्रहमान, और इस तरह नहीं पढ़ना है क्योंकि रा के ऊपर तजदीद के साथ जबर हो या बगैर तजदीद के जबर हो, एनी हाउ जबर की कंडीशन में रा को मोटा ही पढ़ेंगे। रा मुशद्दद हो और उस पर जबर दो जबर हो तो भी रा को मोटा पढ़ेंगे, जैसे सिर वाउ, सिर वाउ, सिर वाउ, हेवी साउंड के साथ। अगर किसी का सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं माइक ऑन करके, आपको हैंड रेज भी करने की जरूरत नहीं है। सिर वाउ। अब बात ये मालूम हुई कि जबर पेश हो तो मोटा, रा के ऊपर तजदीद के ऊपर जबर हो तो मोटा, रा पर तजदीद हो दो जबर हो तो भी मोटा। अगर देखें तो ये चार हालतें जबर के मोटा होने के बारे में हमें मालूम हुई। अब यहाँ नंबरिंग में चौथी है लेकिन इसे हम पांचवी एक भी सवाल काउंट है कर मैम। सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। मैम मेरा ये सवाल है कि रा पे शद्दा होगा तो जबर होना लाजमी है ना, अगर जेर होगा तो? अभी वो आएगा ना नीचे, हर एक की मिसाल आ रही है। अगर आप थोड़ा सा उसके लिए इंतजार करेंगे जेर के लिए तो वो भी स्क्रीन ठीक, में आएगा। हाँ शद्दा वाला पूछे थे मैम, ठीक। जी जज़ाक। हर एक की मिसाल स्क्रीन पर आप देखेंगे और अगर अच्छा स्क्रीन पर देखकर समझेंगे तो और भी अच्छा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रा पर तशदीद हो और उसके ऊपर पेश हो, रा पर, रा पर तशदीद हो और उसके ऊपर पेश हो तो उसको भी फिर मोटा पढ़ेंगे। टॉम और रा पर तशदीद जबर तो मोटा, रा पर तशदीद दो जबर तो मोटा, रा पर तशदीद पेश तो भी मोटा। और इसको अगर आसान करके बताएं कि जबर और पेश आए या दो जबर या पेश आए, तजदीद पर आए, तजदीद के बगैर आए, हर हाल में रा को, इन सारे हालात में रा को मोटा पढ़ेंगे। मर्रू, मर्रू बिहिम, मर्रू बिहिम, हैवी साउंड आपको क्रिएट करनी है। मैम और हमारा एक ये, सवाल है हाँ जी पूछिए। जी। जैसे रा के ऊपर जबर या पेश आ जाए तो मोटा पढ़ेंगे, और तजदीद हो उस जब भी उतना ही मोटा पढ़ेंगे या और ज्यादा मतलब पढ़ा जाएगा? अगर आप सिर्फ इतनी सी तफसील है कि उसको मोटा पढ़ेंगे, जी और आपका ये सवाल कि उतना ही पढ़ेंगे या उससे ज्यादा पढ़ेंगे, तो एक जवाब तो इसका ये है कि उतना ही पढ़ेंगे और एक जी जवाब ये है कि उससे ज्यादा पढ़ेंगे। उससे ज्यादा इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि फिर वहाँ दो राह हो जाती हैं, तो जी दो जी राह जी का जो अमाउंट ऑफ या क्वांटिटी है वो थोड़ा सा ज्यादा है। अलगरज मोटा पढ़ेंगे। जी और जी रा के लिए ऐसा कहीं हमने दर्जे नहीं सुने हैं, जैसे कलकला के दर्जे होते हैं कि और ज्यादा और उससे और ज्यादा। तो रा का जो है इतना ही पढ़ा है कि उसे मोटा पढ़ेंगे। लेकिन इस सेंस में किसी बच्चे को, छोटे बच्चे को समझाना हो
تو اس کو اور زیادہ مانا جا سکتا ہے سسٹر رومانا، لیکن آپ جی کا ذہن اچھی طرح کام کر رہا تھا، اس لیے وہ ایک اچھا سوال آپ نے پوچھا۔ جی میم، الغرض جزاک اللہ۔ قسم نمبر 5، اس کو ہم چھٹی بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ کس طرح؟ را ساکن ہو، جیسا کہ آپ برق کی را میں جزم دیکھ رہی ہیں، یہ جو را کے اوپر سرکل ہے وہ جزم مراد ہے یہاں پر۔ را ساکن ہو، ما قبل فتح ہو، یعنی فتح سے مراد یہاں زبر ہے، اگر را ساکن سے پہلے زبر ہو تو بھی را کو موٹا برقل، برقل، بر اس طرح نہیں پڑھیں گے، بور اس طرح پڑھیں گے، برقل۔ اور را ساکن ما قبل فتح زبر، اور بھی مثالیں انہوں نے دی ہیں، جیسے مرجان، ضارع، اور پھر اگلی مثال بتا رہے ہیں کہ را ساکن ہو، جو یہاں پر ہے را ساکن سے پہلے پیش ہو تو ایسی را کو بھی موٹا پڑھیں گے، یرزقون، برہان، برہان، را ساکن ہے اور را ساکن سے پہلے پیش ہے۔ تو بس اتنا جان لیجئے کہ ابھی تک کے جتنی بھی قسمیں آئیں 6 یا 7، اس میں سب میں یہ تھا کامن چیز کہ اگر زبر پیش خود را پر ہو تو را کو موٹا پڑھیں گے، یا پھر را ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو بھی را کو موٹا ہی پڑھیں گے۔ کنکلوژن یہ ہے کہ پیش اور زبر کی صورت میں را کو موٹا پڑھا جائے گا۔ اب اگلی مثال جو ہے وہ ہے تب تم، یہاں را کو باریک پڑھیں گے۔ کیوں باریک پڑھیں گے؟ کیونکہ را سے پہلے زیر ہے۔ اگر را پر زیر ہو اور را کے اوپر تشدید ہو، اس کے نیچے زیر ہو، جو سسٹر ناظرین ہم سے سوال کر رہی تھیں کہ اگر تشدید ہو اس کے نیچے زیر ہو، تو زیر کی کسی بھی حالت میں اگر را کے اوپر را کے نیچے زیر ہے یا را کے نیچے زیر تشدید کے ساتھ ہے تو ہر حال میں را کو باریک پڑھیں گے زیر کے ساتھ میں، اور اس را ساکن سے پہلے بھی زیر ہو تو بھی باریک پڑھیں گے۔ لیکن موجودہ جو سلائیڈ آپ کو دکھائی دے رہی ہے اسکرین پر، یہ الگ طرح کی انوکھی مثال ہے۔ اس میں لکھا ہے تب تم۔ اب آپ میں سے کوئی ہمیں بتائیے قاعدے کے حساب سے اس را کو کیسا پڑھنا چاہیے، باریک یا موٹا؟ میم باریک پڑھیں۔ باریک۔ باریک پڑھیں گے آپا۔ سب کہہ رہے ہیں باریک پڑھیں گے، لیکن اس را کو ہم باریک نہیں پڑھیں گے۔ اگر اس کو باریک پڑھنا ہوتا تو قاعدہ اوپر ہی ختم ہو جاتا، اتنے کہہ کے کہ زبر پیش آئے تو موٹا، زیر آئے تو باریک۔ سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں پڑھیں گے باریک؟ زیر میں تو باریک ہی پڑھتے ہیں۔ اصل میں یہاں لکھا ہے کہ کسرہ عارضی ہے، کسرہ سے مراد زیر ہے، جو الف کے نیچے الف کے نیچے جو آپ کو زیر دکھائی دے رہا ہے یہ عارضی ہے، اصلی نہیں ہے۔ عارضی مطلب نقلی یا جو اصل میں موجود نہ ہو، ایسا زیر جو اصلی نہ ہو اس کو عارضی زیر کہتے ہیں، اور را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو تو اسے باریک پڑھتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے آپ کیسے پہچانیں گی کہ یہ اصلی ہے یا عارضی ہے؟ تو ہم آپ کو بتا دیں، جتنے بھی مقام آپ کو ایسے ملے جس میں را ساکن سے پہلے الف کے نیچے زیر ہو تو پھر وہ 99% عارضی زیر ہوتا ہے۔ 1% کہیں کوئی لفظ ہو جو ہمارے ذہن میں اس وقت کوئی مثال بھی موجود نہیں ہے، فی الحال تجوید کے بیسک پر سمجھنے کے لیے اگر را میم اگر ساکن آپ سے اجازت دیں پہلے، تو میں بتاؤں۔ نہیں مت بتائیے، اس لیے کیونکہ ابھی نیچے دوسری مثال بھی ہے، ہم جی وہاں آپ میم، سے جواب لیں گے۔ کون سسٹر بول رہی ہیں؟ کون جی میں سسٹر بول رہی کہکشاں۔ ہیں؟ جی سسٹر کہکشاں، ابھی دوسری مثال بھی ہے، وہاں پھر آپ کا فائدہ ٹکرا سکتا ہے، ابھی آپ سے جواب لیں گے۔ تو اگر
عموماً را ساکن سے پہلے آپ کو حمزہ دکھائی دے اور اس پر زیر ہو تو وہ زیر عارضی ہے۔ اب ہم نیچے کی مثال پہ چلتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے امر امر تابو۔ سسٹر کہکشاں، آپ بتائیے امر تابو کی را کیسی ہوگی، باریک یا موٹی؟ کیونکہ را ما قبل را ساکن را ما کیسی قبل، ہوگی، باریک یا موٹی؟ جی میم باریک ہوگی، باریک نہیں نو ہوگی، میم، را والے نو میم باریک نہیں موٹی ہوگی، ہوگی، موٹی موٹی ہوگی۔ ہوگی میم میم۔ را والے ورڈ میں جو ہے سسٹر کہکشاں اگر بولیں گی تو اچھا رہے گا، اسی لیے ہم نے ان کا جواب وہاں نہیں لیا تھا، اسی لیے ہمیں روک دیا تھا، ہمیں معلوم تھا کہ وہاں پر بھی چوک ہی ہوتی بتانے میں۔ تو سسٹر کہکشاں یہاں پر را باریک نہیں ہوگی، موٹی ہوگی۔ وجہ آپ کو اگر معلوم ہو تو وہ جواب آپ یہاں پر آپ کا فٹ آئے گا، آپ یہاں پر دے سکتی ہیں۔ جی میم کیونکہ را ساکن ما قبل متحرک ہے اور حرکت زیر اس حرف میں نہ ہو کر دوسرے حرف میں ہے۔ آپ کیسے پہچانیں گی کہ اس حرف میں نہیں ہے؟ آپ کو عربی زبان تو نہیں آتی نا، حرف نہ کہہ کر آپ لفظ کہیے، حرف جی کہتے ہیں میم، الف با تا سا کو، اس جی لفظ میم میں نہ سوری، ہو کر اس دوسرے لفظ میں لفظ نہ میں۔ ہو کر دوسرے لفظ میں، جس میں ہم پھر آپ یہی کیسے بول پہچانیں گی؟ آپ تو عربی نہیں جانتی ہیں، آپ جتنے لوگ موجود ہیں وہ لوگ تو عربی نہیں جانتے، انہیں کیسے پتہ چلے گا ایک لفظ ہے دوسرا لفظ ہے؟ یہاں پہ تو لکھا ہے ایسا فارمیٹ ہم نے سمجھانے کے لیے ایسا بنایا، قرآن مجید میں اتنا فاصلہ تھوڑا نہ دکھائی دے گا آپ کو، وہ تو ایک دم قریب قریب لکھا ہوگا۔ جی میم میں نے یہ پڑھا نا، را ساکن ما قبل متحرک، تو ہم پہلے را کے پیچھے دیکھیں گے کہ ساکن کہاں کہاں ہے، کیونکہ را میں بھی ساکن ہے اور حمزہ میں بھی الف میں بھی ساکن ہے، دونوں ساکن ہے، اس کے بعد ہے، اس سے ہم پہچان لیں گے کہ یہ را ساکن ما قبل متحرک ہے اور حرکت زیر ہے۔ چلیے ہم آپ کو بتا دیں کہ را ساکن اور زیر اگر الگ الگ کلمہ میں ہوں تو پھر را ساکن کو بجائے باریک پڑھنے کے، جو کہ قاعدہ تھا کہ را ساکن سے پہلے زیر آئے تو را ساکن کو باریک پڑھنا چاہیے، وہ قاعدہ ساکت ہو جاتا ہے، باقی نہیں رہتا۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ کیسے معلوم ہوگا، عربی نہیں آتی ہے تو اگر دونوں کے بیچ میں الف حرف ہوگا، الف سے معلوم چلے گا کہ یہاں سے دوسرا لفظ شروع ہو رہا ہے، الگ لفظ ہے اور ارتابو الگ لفظ ہے۔ اب سسٹر کہکشاں آپ بتائیے، ارتابو ارتبتم کی را باریک ہوگی یا موٹی؟ سسٹر کہکشاں اور وجہ بتائیے۔ جی میم اس میں را ساکن ما قبل متحرک ہے اور حرکت زیر ہے، تو یہ زیر عارضی ہے، کیونکہ جیسے ہم نے سورہ فجر میں پڑھا ہے ارجعی، اس میں بھی زیر عارضی تھا، یہاں پہ بھی زیر عارضی ہے، تو جی میم، جی کوئی بول رہا ہے شاید۔ اصل میں ابھی تھوڑی دیر کے لیے مائک آف کر رہے ہیں۔
कल में बहुत मदरसे में बैठे हुए हैं तो अजान हो रही है, इसलिए ऑफ करना पड़ा, माफी चाहते हैं। बहरहाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला ये चल रहा था कि रोता बुतुम की राह बारीक होगी या मोटी मोटी होगी, और ये कौन सा मसला है, ये कौन सा काम है जिसमें बजाय कायदे के हिसाब से बारीक होनी चाहिए लेकिन उसको मोटा पढ़ते हैं। उसकी वजह ये है कि रा साकिन और ज़ेर अलग अलग लफ्ज में हो, जैसे हमने नीचे की मिसाल में देखा। दूसरी वजह रा साकिन और ज़ेर इस हाल में हो कि वो ज़ेर असली ना हो, आर्जी हो। अब सवाल यह है कि असली और आर्जी की पहचान कैसे होगी। असली और आर्जी की पहचान ये है कि अगर रा साकिन के बाद वाला, सिस्टर कहकशां आप बता सकती हैं आप कैसे पहचानेंगी असली और आर्जी? आपने कहा आर्जी है, वो हमने कह दिया, आप पहचानना आता है आपको आर्जी ज़ेर को? बताइए सिस्टर कहकशां है क्या मौजूद? जी मैम, मैं मौजूद हूँ, पर मेरे बैकग्राउंड में वो काम चल रहा था तो वो आपको आवाज लग आता है? रही थी। आपको जी आता है मैम, पहचान आर्जी ज़ेर कैसे पहचानेंगी आप, ये आर्जी है या असली है? मैम इसमें जो है आपने अभी बताया था कि एक एक इससे पहले वाले लफ्ज से हम देखेंगे कि अगर दोनों के दरमियान में हमजा के नीचे जेर है या है नहीं, तब यहाँ जेर। तो बगैर उसके है ना, जी यहाँ कोई तो पीछे कोई लफ्ज मौजूद नहीं है ना, वो तो जी नीचे मैम। वाली मिसाल में था। यहाँ वहां पर जी रीजन ये था, इसमें जी रीजन ये था कि दोनों अलग अलग लफ्ज में है। जी ठीक है, जी यहाँ पर मीम के नीचे जेर था, जी यहाँ पर अलिफ के नीचे जेर है या हमजा के नीचे जेर है। अब जी मैम। वहां पर रीजन क्या था, अलग अलग लफ्ज में जेर है इसलिए मोटा है। यहाँ रीजन क्या है, जेर आर्जी है। तो जी अलग अलग लफ्ज तो आप बीच में अलिफ होने से पहचान लेंगी, जेर जी जी आर्जी को कैसे पहचानेंगी? जिन्हें अरबी नहीं आती या जो जेर आर्जी नहीं जानते वो कैसे पहचानेंगी? ये पढ़ा है आपने कहीं? नहीं मैम, ये नहीं पढ़ा है। इसीलिए हमने आपसे ये जवाब नहीं लिया था, सिर्फ यही बताना था, क्योंकि हमें ये मालूम था आयत के बाद 200% जहाँ आपका आयत जवाब गलत पूरी ही होती होगा है जी। उसके बाद बोला तो नहीं होता। उसके बाद भी हो सकता है, उससे पहले भी हो सकता है, क्योंकि वक्फ जो है वो सिर्फ आयत पर ही नहीं होते, आयत के बीच बीच में भी होते हैं। आयत और जहाँ हो जाती है वक्फ की जो जो बैठे अलामात वहां होती से हैं वो आयतों के बीच में भी होती हैं। और उसके अलावा भी एक वक्फ ऐसा है कि इंसान सांस फूलने की वजह से या मजबूरी की वजह से वक्फ हो जाए, जो इंशाल्लाह हम सबक नंबर 17 में पढ़ेंगे। वक्फ मजबूरी, वक्फ इस्तरारी, तो उस वजह से भी होता है, वो सूरतें बनती हैं इंशाल्लाह। ऐसा करते हैं, ये काफ़ी तफसील तलब है, इसकी वजह हम इंशाल्लाह अगली क्लास में बताएंगे। असल में हम कहीं और मौजूद हैं और लोग आ रहे हैं जमात के लिए, तो क्लास बहुत डिस्टर्ब हो सकती है, इसलिए अभी इजाज़त चाहते हैं आप लोगों से। बताइए, क्लास को, मीटिंग को ऑफ कर दें, इजाज़त है क्या आप लोग की? जी जी बिल्कुल जी, जज़ाकल्लाह खैर। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप लीव कर दीजिए। जी आपका अच्छी बात है, आप बहुत बहुत आपकी तबीयत शुक्रिया, खराब है ना, जज़ाकल्लाह। लेकिन प्लीज़ अगली जज़ाकल्लाह क्लास खैरन में कसीरन, ज़रूर हाजिर रहें, बहुत अच्छा जज़ाकल्लाह था। खैरन कसीरा। आमीन भैया। अल्लाह आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए, अस्सलाम आपको आमीन। जल्द से एहतियात करे। जल्द से जल्द सेहत अता फरमा। क्लास के लिए कोई होमवर्क नहीं है? जी सिस्टर रुमाना, आप होस्ट हैं, प्लीज मीटिंग एंड कर दीजिए। मैम आपको होस्ट बना दिया हमने पहले। अच्छा अच्छा। जी